So see, in the last lecture, we have said, according to electromagnetic wave theory, if you remember, we have done two wave theories. According to electromagnetic wave theory, the energy of the wave is directly proportional to the intensity of the radiation. Energy of the wave is directly proportional to the intensity of the radiation, and intensity of the radiation is directly proportional to what? Number of photon. मतलब हमारे पास हमारे वेव्स में कितने फोटॉन्स है. अगर हमारे वेव्स में ज्यादा फोटोन रहेंगे, मोर फोटोन अगर रहेंगे, तो इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी मोर, एंड बिकॉज ऑफ मोर इंटेंसिटी विल हैव द मोर एनर्जी. ये कंसेप्ट कौन सा था? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. मतलब इन शॉर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर. और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, according to Planck's quantum theory, the energy of the particle or energy of the packet or energy of the radiation or photon is directly proportional to what? Frequency of the photon. मतलब जो हमारे पास photons है उसका frequency किसके ऊपर है? मतलब दोनों जगह में energy मिल रही है, but in wave theory it depends upon the intensity, मतलब number of photon के ऊपर. और यहाँ पे according to Planck's quantum theory depends upon what? Frequency of the photon. Frequency of the photon. Can anybody tell me what is the meaning of frequency? Can anyone tell me what is the meaning of frequency? Yes? Number of waves in 1 second. Hello? Yes, number of wave passing through a point in a 1 second are called as the frequency, correct? And last lecture, we have done one concept, black body radiation, and we have seen कि अगर हमें black body radiation concept explain करना है, तो हमें वेव थ्योरी का भी जरूरत था और हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का भी जरूरत था. मतलब दोनों थ्योरीज को रिक्वायरमेंट थी. मतलब वेव को, मतलब एनर्जी को वेव भी कंसिडर करके एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, और एनर्जी को पार्टिकल्स फॉर्म में कंसिडर करके भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ा. तो ये पार्ट हम लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर में. टुडे विल स्टार्ट विद द न्यू इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Photoelectric effect. Now, what is photoelectric effect here? Like first, photoelectric effect. Now here normally, like for example, if we have a metal, or what is photoelectric effect? The electrons are ejected. Electrons are ejected when beam of light strikes a metal surface. देखो, what is the first point I have said here? The electrons are ejected. Electron बाहर निकल जाएंगे कभी? When a beam of light strike on the metal surface. देखो, मतलब एक एग्जांपल बता दो. मेटल नॉर्मली, मतलब अगर हम लोग ये बोलेंगे कि ये हमारे पास है मेटल्स है, ये मेटल है. नॉर्मली मेटल में क्या होता है मालूम है? सपोज वी से दिस इज अ मेटल, अ पीस ऑफ मेटल. पीस ऑफ मेटल, मेटल के अंदर क्या होता है नॉर्मली? यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होते हैं. पॉजिटिव आयन, कोई भी मेटल आप ले लोगे तो पॉजिटिव आयन, और उनके बीच में यहाँ पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन. ये पॉजिटिव आयन, ओके. और उनके बीच में यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. उनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन रहेगा. ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयन, कोई भी आप मेटल लोगे तो मेटल में क्या होगा? पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स.
तो जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगा, लाइट इसके ऊपर अटैक करेगा, लाइट, ये लाइट है, लाइट, और लाइट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोटोन। मतलब यहाँ पे जब रेडिएशन अटैक करेंगे, रेडिएशन जब यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, तो ये रेडिएशन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देंगे। So when light falls on the surface of the metal, when light falls on the surface of the metal, electron are ejected on the surface, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, and these effect are called as what? Photoelectric effect. मतलब अगर हम लोग, so what is photoelectric effect? What is photoelectric effect? That the photoelectric effect means, I'll see here. That when the electrons, 1 minute, can you able to hear me? So here, what we said here, the electrons are ejected when the beam of light strike on the metal. This effect is called as what? Photoelectric effect. This effect is called as the photoelectric effect, and the electron ejected, are called as photoelectron. इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर कॉल्ड एज द फोटोइलेक्ट्रॉन। मतलब जब रेडिएशंस यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, जब रेडिएशन यहाँ पे अटैक करेंगे, मतलब रेडिएशन मतलब कौन? लाइट, एनर्जी, फोटोन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो मेटल्स के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन हैव गॉट इजेक्टेड। मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकल रहे? बिकॉज ऑफ द फोटोन, because of the light, and therefore this electron, the electron ejected are called as the photoelectron। और यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मेटल में जो करंट प्रोड्यूस होगा, the current produced because of electrons are called photo करंट। ऑफकोर्स हमें इसका इतना जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करेंगे? करंट कैरी करेंगे। तो करंट कैरी बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज व्हाट? फोटो करंट। और भी मैं इसका एक प्रॉपर डायग्राम आपको बता दूं। इसका और एक डायग्राम कैसे हो सकता है कि नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब, जो ट्यूब हम लोग कैथोड रे के इसमें देखी थी, या हम लोगों ने एनोड रे में देखे कैथोड। यहाँ पे ट्यूब है, हियर दिस इज अ मेटल, ये हमारा मेटल है। दिस मेटल एक्ट एज अ कैथोड, this is a metal which is acting as a cathode is negative, and here we are having another metal plate, this is the positive plate which is acting as a anode, and this cathode and anode are connected to a it is connected negative, and here it is, यहाँ पे it is connected to what? Ammeter, it is connected to ammeter, and ammeter is connected to the positive। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ये वोल्टमीटर, यहाँ पे वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा? जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगा, लाइट यहाँ पे जब इंसिडेंट करेगा, तो इस मेटल के सरफेस से क्या बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक ऑन द एनोड। मतलब एनोड हमारा क्या काम करेगा? एनोड विल वर्क एज अ डिटेक्टर, एनोड विल वर्क एज अ डिटेक्टर। मतलब
This is the light. Light मतलब radiation, or we can say, we can call them as the photon. You know, light को भी हम लोग क्या बोलते हैं? It is incident light or normal radiation, light of photon. So when photon or a light strike on the surface of the metal surface से क्या बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन. और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, ये उनका एनर्जी कितना है, ये सब कौन डिटेक्ट करेगा? डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा. और देन डिटेक्टर से फिर यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? एमीटर. और फिर एमीटर से हमें पता चलेगा कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है. इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट है. आपको इसका और रीजन है, अभी हमें रीजन है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको. व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? The electrons are ejected, मतलब electrons are removed when the beam of light strikes a metal surface. मतलब जब हमारा लाइट बीम मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे. एंड इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ द इजेक्शन अगर वर्ड नहीं आया तो रिमूवल बोलो. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल when the light incident on it are called as the photoelectric effect. Electron removed from the surface of the metal are called as the photoelectron. Current produced by this electron are called as what? Photocurrent. Current produced by the electron are called as what? Photocurrent. Okay. तो अभी हमें यहाँ पे रीजन देखना है, हमें कि रीजन क्या क्या थे. कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारा है वो दोनों थ्योरीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था. वेव थ्योरीज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर भी डिपेंड. अभी मुझे कोई बोलेगा व्हाट इज वेव थ्योरी, व्हाट इज वेव थ्योरी, बोलो कोई एक जन बोलो व्हाट इज वेव थ्योरी. यस स्टूडेंट प्लीज. वेव थ्योरी का मेन कांसेप्ट क्या था? वेव थ्योरी का मेन कांसेप्ट क्या था? यस. Energy is directly proportional to the intensity of radiation, which is directly proportional to What are the effect? photon. What they observe in the photoelectric effect? सबसे पहले उन्हें photoelectric में क्या ऑब्जर्व किया था? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, और what they observe उन्हें फिर उसके एक्सप्लेनेशन दे दिया. ऑब्जर्वेशंस क्या थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में? ऑब्जर्वेशंस क्या थे? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या था? नो टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन the striking of light and electron ejected. सबसे पहले उन्होंने क्या, एक थोड़ा ब्लर दिख रहा है, एक मिनट स्टूडेंट. अभी क्लियर आ रहा है क्या कि अभी भी ब्लर दिख रहा है? Yes student, can you able to hear me? It is clear. आवाज कम है क्या मेरा? मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर आपको? पर थोड़ा ब्लर है. हेलो, आर यू एबल टू? Yes student. So now it is Are you clear. able to hear me? हो सर येत आहे. It's clear now. Okay, thank you. Yes. No time lag. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर दिया कि नो टाइम लैग बिटवीन, लैग मतलब गैप नहीं था, नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड. नॉर्मली कैसे हो रहा था कि अगर हमारा ये मेटल है, अगर हमारा ये मेटल है, नॉर्मली अगर हम लोग वेव बोल रहे वेव, तो वेव क्या होगा? ये हमारा एक वेव होगा, करेक्ट. ये हमारा दूसरा वेव होगा, तो एक वन ट्रफ वन क्रिस्ट, तो ये एक वेव, वन क्रिस्ट एंड वन ट्रफ दूसरा वेव. तो वेव के लिए क्या होता है कि अगर वेव होता, अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे वेव स्ट्राइक हो रहे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे वेव है, तो वेव क्या होता है? वेव हैज अ वेव पीरियड.
वेव को स्ट्राइक करने, एक मिनट दूसरा डायग्राम बताता हूँ। अगर हमारे पास ये मेटल सरफेस है, ये मेटल है, मेटल सरफेस, और इसके ऊपर अगर कोई वेव अटैक कर रहा है, अगर उसके ऊपर कोई वेव अटैक कर रहा है, हेलो, student 1 minute, I have just kept on a hold. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, एंड इफ यू एज्यूम द इट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, a wave है. Normally what happen, the every wave has a wave period, every wave has a wave period, मतलब वेव को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ टाइम लगेगा, वेव को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ टाइम लगेगा. मतलब जब एक वेव स्ट्राइक करेगा तो पार्टिकल इमीडिएटली नहीं एमिट होगा, इमीडिएटली एमिट नहीं होगा. मतलब कैसे, ये फर्स्ट वेव है, तो उसके बाद ये दूसरा सेकेंड वेव है, करेक्ट. तो अगर फर्स्ट वेव स्ट्राइक करने के लिए, हर एक वेव का क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड टी. मतलब वेव को यहाँ से यहाँ तक स्ट्राइक करने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ सेकेंड्स लगेंगे. तो अगर ये हमारा, हेलो हेलो हेलो, स्टूडेंट 1 मिनट है. यस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो वेव को स्ट्राइक, मतलब अगर पहला वेव यहाँ पे आ गया तो दूसरा वेव आने में के लिए कुछ टाइम लगेगा. बट नॉर्मली उनको क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो मतलब स्ट्राइक होना और इजेक्शन होना दोनों एक साथ हो रहा था. स्ट्राइकिंग ऑफ द वेव एंड इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली. इसका मतलब जब यहाँ पे लाइट स्ट्राइक हो रहा था, तो स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेव, striking of the light was not in the form of wave. Okay, striking of the light was not in the form of wave, but it was in the form of particle, it was in the form of particle. And therefore इसका मतलब नहीं क्या किया, so light here, light was, or light, हॅलो, हा हॅलो, मी तुम्हाला कॉल करतो 1 मिनिट कॉल करतो. स्टुडंट 1 मिनिट, मी तुम्हाला जरा होल्डवर ठेवतो 1 मिनिट.
So what they observe here, when light was incident on the surface of metal, the electron were ejected immediately, or electron were ejected immediately. That means light has particle nature. लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, ये उनका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हुआ. मतलब यहाँ पे लाइट वेव के फॉर्म में इंसिडेंट नहीं हो रही थी, तो लाइट वाज हैविंग व्हाट पार्टिकल नेचर, और लाइट और वी कैन से लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर. और पार्टिकल था इसलिए मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा था, इमीडिएटली स्ट्राइक हो रहा था, और जैसे ही पार्टिकल स्ट्राइक हो रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था. तो ये पहला रीजन था. तो फर्स्ट रीजन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब वहां पे स्ट्राइक हो रहा था, तो स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट में और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में कुछ भी गैप नहीं था, इमीडिएटली आ रहा था, इमीडिएटली. तो उन्होंने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर वेव है तो हर एक वेव को स्ट्राइक करने के लिए क्या लगेगा, वेव पीरियड लगेगा. हर एक वेव को स्ट्राइक करने के लिए क्या लगेगा, वेव पीरियड लगेगा. मतलब अगर पहला वेव यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो दूसरे वेव को आने के लिए कुछ टाइम लगेगा. मतलब वेव स्ट्राइक करने के बाद थोड़े टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वेव को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए. लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व क्या हो रहा था कि जैसे ही लाइट स्ट्राइक कर रहा था, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था. जैसे ही लाइट स्ट्राइक हो रहा था वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट हो रहा था. इसका मतलब यहाँ पे जब लाइट स्ट्राइक हो रहा था तो लाइट वाज नॉट स्ट्राइकिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, correct, it was striking in the form of particle. So it was so light was incident on the surface of the metal. As light was incident on the surface of the metal, the electron were ejected immediately. That means what light has a particle nature. Is second point. Second observation क्या था, second observation, suppose we are having the light, ये हमारा metal plate है, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है. सो यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, तो मेटल प्लेट के ऊपर क्या होगा, मेटल प्लेट से मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. तो उनको क्या लगा कि अगर हम लोग ऐसा, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा उन्होंने एज्यूम किया कि यहाँ से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी लगेगा, फॉर एग्जांपल 10 जूल. इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कितना लगेगा, 10 जूल. और अगर हमने ऐसा एज्यूम किया कि हमारे पास ये जो वेव्स है, ये वेव का एनर्जी है 5 जूल, एक वेव का एनर्जी है हमारा 5 जूल, करेक्ट. तो इसका मतलब अगर ये वेव का एनर्जी 5 जूल है, फिर दूसरा वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा, उसका भी एनर्जी रहेगा 5 जूल. तो ऐसा मतलब उन्हें क्या लगा कि ये वेव का एनर्जी 5 जूल है, दूसरे वेव का एनर्जी 5 जूल है, तीसरे वेव का एनर्जी 5. तो ऐसे अगर बहुत सारे वेव्स मैंने अगर यहाँ पे पास कर दिए, तो एक ना एक दिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, एक ना एक दिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा. लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत सारे वेव्स यहाँ पे इंसिडेंट करने के बाद, बहुत सारे वेव्स यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा था. तो ऐसा क्यों? तो फिर उन्हें पता चला यहाँ पे कि मतलब वेव, ऐसा लगा कि हाँ ये वेव मतलब एनर्जी है, तो यहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूसली अटैक कर, तो ये 5 जूल ऐसा करके एनर्जी बढ़ेगा. तो अगर यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगा तो एक ना एक दिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा था. क्यों? तो फिर उन्हें पता चला कि इसके लिए हमें कंसेप्ट की जरूरत है, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ threshold, THRE
threshold, threshold frequency. Threshold frequency. What is threshold frequency here? It is the minimum, sorry, it is the minimum frequency required. It is the minimum frequency required of light, minimum frequency of light, or minimum frequency required of light to cause photoelectric effect, to cause the photoelectric, मतलब photoelectric effect होने के लिए, photoelectric effect होने के लिए यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट करेगा उसके पास एक क्या होना चाहिए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी. एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, the minimum frequency, what is minimum frequency? What is threshold frequency? It is the minimum frequency required of light to cause the photoelectric wave. मतलब for example, अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा 10 हर्ट्ज पर सेकेंड या 10 पर सेकेंड, अगर मतलब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा 10 पर सेकेंड, तो जब यहाँ पे लाइट जब स्ट्राइक करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात किसने की थी, प्लैंक्स क्वांटम ने. फ्रीक्वेंसी की बात किसने की थी, प्लैंक्स क्वांटम में. इसका मतलब यहाँ पे जब लाइट ट्रेवल होगा, इट विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ द वेव, द लाइट विल स्ट्राइक इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी व्हाट, न्यू. लेकिन यहाँ पे रूल क्या है, ये जो लाइट हमारे यहाँ पे स्ट्राइक होगा उसका फ्रीक्वेंसी अगर न्यू रहेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना लगेगा, न्यू जीरो. सो हियर आई कैन से the nu zero is called threshold frequency. Nu zero is called as a threshold frequency. Threshold frequency का मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ से होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. और अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर हमें मालूम रहेगा तो nu zero is called as a threshold frequency, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी. and therefore the minimum energy required to remove electron, minimum energy required to remove electron is given by which formula, h nu zero. न्यू जीरो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट. मतलब अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लगेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो लगेगा, और न्यू जीरो से मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम एनर्जी मिलेगा h न्यू जीरो. क्या मिलेगा, h न्यू जीरो. एंड द मिनिमम एनर्जी is called मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन. जो मतलब इलेक्ट्रॉन को, देखो मैं समझा तो कंसेप्ट आपको थोड़ा. सबसे पहले क्या देखा हमें कि हम लोग वेव्स अगर पास करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था. क्यों नहीं निकल रहा था, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी का जरूरत है. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी का मतलब नहीं बोला कि यहाँ से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमें एनर्जी कितना लगेगा, 10 जूल लगेगा. तो एनर्जी 10 जूल लगेगा. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू न्यू जीरो. H तो क्या रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होगा. इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक मिनिमम क्या रहेगा, न्यू जीरो. और न्यू जीरो को क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिमम फ्रीक्वेंसी. और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब अगर यहाँ से कोई लाइट अगर आ रहा है तो वो लाइट के पास मिनिमम न्यू जीरो इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. अगर यहाँ से कोई लाइट यहाँ तक आ रहा है तो ये लाइट को यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उस लाइट के पास फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितना होना चाहिए, न्यू जीरो. बिकॉज व्हाट इज न्यू जीरो,
बिकॉज न्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय एच करोगे तो न्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय एच करोगे तो क्या मिलेगा आपको ई जीरो, और ई जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, and minimum energy required to remove the electron from an atom from the metal is called as what, work function, and work function is given by which symbol, W0. So therefore we can have here W0 is equal to H nu 0. W0 is equal to what, H nu 0. Again I'll repeat here. सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि लाइट अगर, एक मिनट स्टूडेंट, अगर लाइट यहाँ के वेव के फॉर्म में अगर आएगा तो बहुत सारे यहाँ पे वेव्स आएंगे, मतलब एक ना एक दिन इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। फिर उन्हें पता चला कि नहीं, अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक मिनिमम क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, और एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला, एच न्यू जीरो। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, न्यू जीरो। न्यू जीरो का मतलब क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जरूरी है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required by light, minimum frequency required by light to cause the photoelectric effect, and this minimum frequency is called as a threshold frequency. तो अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मालूम है तो हमें क्या पता चलेगा, मिनिमम एनर्जी पता चलेगा required to remove the electron, and the minimum energy required to remove the electron is given by which formula, H nu 0, and the minimum energy required to remove the electron is called as the work function, which is given by which formula, H nu 0. अभी कंसेप्ट देखो, और ये जो कंसेप्ट था, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल था, वो कंसेप्ट किसने एक्सप्लेन किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे रिमूव करना है तो फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, 10 पर सेकेंड, बराबर। इसका मतलब जब ये वेव यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ये वेव का जो एनर्जी है और ये जो हमारे पार्टिकल्स है उनका एनर्जी कितना होना चाहिए, 10 और ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ये 10 से ग्रेटर, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है 10 से इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अगर मैंने बोला ये फ्रीक्वेंसी 5 है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, 10 पर सेकेंड चाहिए, 10 हर्ट्ज चाहिए। लेकिन अगर मैंने 5 हर्ट्ज अगर पास कर दिया तो 5 हर्ट्ज यहाँ पे स्ट्राइक तो करेगा लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो जो इंसिडेंट लाइट रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट, टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब अगर आपको चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक होना चाहिए तो जो इंसिडेंट लाइट हमारा है उस इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है विच शुड बी इक्वल टू or greater than the threshold frequency. Threshold frequency मतलब minimum frequency which is required for the ejection of electron. The minimum frequency which is required for the ejection of the electron is called as a photoelectric effect. इसीलिए हम लोग photoelectric definition में क्या लिखते हैं कि it is the frequency required, a certain minimum frequency required to remove the electron from the surface of the metal, and the minimum frequency what we require to remove the electron are called as what, threshold frequency. तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या कि इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगा तो लाइट का फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी हमारे मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, मतलब मैंने एज्यूम किया था कि 10 है, तो अगर हमारा इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी 10 से इक्वल और 10 से अगर ज्यादा रहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। और ये कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, मतलब कौन सा कंसेप्ट था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यू है, तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला, एच। देखो E का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, एनर्जी ऑफ द लाइट, और यहाँ पे energy of the electron हुआ। So here E equal to H nu, where E is called as energy of incident
रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी E है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कितना लग रहा है E0, इन दोनों में H कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए किसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, न्यू। न्यू मतलब व्हाट, फ्रीक्वेंसी। और क्या रूल है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द न्यू जीरो। न्यू जीरो मतलब व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सेकंड कंसेप्ट था। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कभी होगा, ये किसने बोला, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और कभी इजेक्ट होगा कि अगर हमारे इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी इक्वल टू या ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये सेकंड पॉइंट था, and the second point was explained by using what, Planck's quantum theory. Next one, third point. Okay, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या था, the third point, the kinetic energy of photoelectrons, kinetic energy of photoelectron or kinetic energy of, 1 minute, kinetic energy, 1 minute, I'll just write. Third, the kinetic energy of ejected photoelectrons, kinetic energy of the ejected photoelectron depends on the frequency of light use. देखो ये भी कंसेप्ट हमारा जो था, ये भी हमारा जो कंसेप्ट था किसके ऊपर बेस्ड था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। क्या हो रहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो अगर डायग्राम बताऊंगा मैं यहाँ, तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करेगा, कभी अगर इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करे इलेक्ट्रॉन कभी इजेक्ट होगा अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी रहेगा और इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कभी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कभी होगा या कभी पाया जाएगा, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज। क्योंकि देखो मतलब अगर ये हमारा प्लेट है, यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ओके, इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना है, तो ये हमारा, और यहाँ से मिनिमम फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल 10 हर्ट्ज, और यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है 15 हर्ट्ज। देखो तो ये हमारा जो फोटोन है, फोटोन जो लाइट, उसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, 10 हर्ट्ज चाहिए। तो 15 हर्ट्ज में से 10 हर्ट्ज यूज किया जाएगा और 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी किसे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। और इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अगर ये भी 10 है तो खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा। मतलब अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का फ्रीक्वेंसी दोनों अगर इक्वल रहेंगे तो खाली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या होगा, देन जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी जो बचे, फ्रीक्वेंसी मतलब देखो यहाँ से न्यू मतलब क्या मिलेगा, एच न्यू। तो एच न्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, एच न्यू जीरो। मतलब ये एनर्जी हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ से थोड़ा एनर्जी इधर इजेक्शन के लिए यूज किया जाएगा और बचा हुआ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसके फॉर्म में मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी। एंड देयरफॉर वी कैन से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू देखो इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है और ये ज्यादा है, मतलब इसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, तो एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू जीरो।
तो आई कैन से हियर h nu माइनस h nu 0 इज इक्वल काइनेटिक, मतलब यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, E इक्वल टू h nu 15 है, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, E इज इक्वल टू h nu 0, बट व्हाट वी हैव सीड, बिकॉज इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए उसका एनर्जी भी ज्यादा रहेगा, तो आधा एनर्जी यहाँ पे यूज होगा और जो एनर्जी रिमेनिंग है दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. So kinetic energy of the ejected electron is given by which formula, h nu minus h nu 0. Okay, and kinetic energy का formula क्या है, half mv square is equal to h nu minus h nu 0. Okay, ये हमारा main formula हो गया. But kinetic energy half mv square equal to h nu, and we know that h nu 0 मतलब what, it is the minimum energy required to remove the electron, and minimum energy यहाँ पे हमने लिखा था h nu 0 is what, minimum energy required to remove the electron, and minimum energy required to remove the electron is called as what, work function. तो minimum energy required to remove the electron is also called as what, work function. अब इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन ये हमारा मेन फॉर्मूला है. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगा, then the remaining energy will convert into what, काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, और इस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी के ऊपर. फ्रीक्वेंसी मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, कंसेप्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर. तो ये भी पॉइंट, मतलब जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी है, ये कौन से कंसेप्ट ने एक्सप्लेन कर दिया, बाय यूजिंग अ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ओके, and the next point of this theory is the number of photoelectrons or the number of electrons, the number of electron ejected is proportional to the intensity or brightness of the striking light. देखो here striking light, but do not depend on the frequency of light. देखो ये जो कंसेप्ट है, the number of electron ejected is proportional to what, intensity of the light, मतलब brightness of the light of the striking light. मतलब कैसे होगा, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा मेटल प्लेट है, ये हमारा मेटल प्लेट है, यहाँ पे अगर लाइट स्ट्राइक करेगा, ये हमारा कौन सा लाइट हुआ, इंसिडेंट लाइट. ओके, और यहां से एमिट होगा इलेक्ट्रॉन, सो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. ओके, यहां से हमारा आ जाएगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि ये इंसिडेंट लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन. इसका मतलब अगर ये हमारे वेव्स है, ये वेव्स है, ये अगर वेव्स है, तो यहाँ पे अगर फोटोन बढ़ेंगे, उनका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रहा, सबका देखो सब फोटोन का फ्रीक्वेंसी सेम है. इंसिडेंट लाइट विथ गिवन फ्रीक्वेंसी. अभी हम लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी सबका, ये फोटोन का सब फोटोन का फ्रीक्वेंसी सेम है, खाली क्या किया हमने, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए. नंबर ऑफ फोटोन मतलब देखो इंसिडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. 1 मिनट यहाँ पे एक बोलता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है,
intensity of light depends on intensity of the light depends on number of photon. नंबर ऑफ फोटोन मतलब अगर हमारे पास फोटोन ज्यादा रहेंगे मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगा. तो यहाँ पे हमारे लेकिन सब फोटोन का फ्रीक्वेंसी सेम है. सो इंसिडेंट लाइट विद अ गिवन फ्रीक्वेंसी मतलब इस 1 2 3 4 5 6 सारे फोटोन का फ्रीक्वेंसी सेम है. खाली हम लोग यहाँ पे क्या करें, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे. तो नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी बढ़ेगा. लेकिन अगर फोटोन बढ़ेंगे तो अगर देखो यहाँ पे कितने फोटोन्स है 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने इजेक्ट हो गए 5 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे कितने फोटोन्स है 1 2 3 4 5 6. तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए 6. तो इसका मतलब अगर हमारे पास इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा मतलब हमारे पास क्या ज्यादा रहेंगे, फोटोन अगर ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स अगर ज्यादा रहेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एंड दिस नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. क्योंकि सारे फोटोन का फ्रीक्वेंसी सेम था. मतलब अगर आपने रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, देखो अभी यहाँ पे कितने फोटॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फोटोन है. तो मुझे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल 11 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. लेकिन अगर मैंने इनका फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे 11 ही मिलेंगे. अगर मैंने इनका फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो भी मुझे इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे 11 मिलेंगे. इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ फोटोन. एंड नंबर ऑफ फोटोन के ऊपर क्या डिपेंड करता है, इंटेंसिटी. तो ये कंसेप्ट था अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी. अपना वेव थ्योरी था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव और वेव का एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को. ये हमारा फर्स्ट वेव थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं. मतलब आउट ऑफ द 4 पॉइंट 3 पॉइंट वर एक्सप्लेन बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड 1 पॉइंट वर एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट. सो व्हाट इज द पॉइंट वी हैव सेड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और द ब्राइटनेस ऑफ द स्ट्राइकिंग लाइट. इसका मतलब व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन. अगर यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा, द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड विल बी मोर. तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. तो उनको क्या बोलना था कि ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये दोनों थ्योरी को कंसिडर करके एक्सप्लेन किया जा सकता है. कोई एक थ्योरी मतलब वेव थ्योरी या प्लैंक्स थ्योरी को एक्सप्लेन करोगे तो नहीं चलेगा. हमें वेव थ्योरी भी यूज करना है और हमें प्लैंक्स थ्योरी भी यूज करना है. एक बार मैं वापस रिवाइज करता हूं एंड देन विल गो फॉर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट. ओके, देखो सबसे पहले व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. व्हाट इज इफेक्ट, when the electrons are ejected, when the beam of light strike on a metal surface are called as the photoelectric effect. The emitted electron are called as the photoelectron and the current produced are called as the photocurrent. लेकिन हमें करंट के बारे में ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करना. देखो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. इलेक्ट्रॉन बाहर निकले कि नहीं किसे पता चलेगा, डिटेक्टर को. फिर बाद में यहाँ पे करंट फ्लो होगा एमीटर से, तो यहाँ पे हमें करंट पता चलेगा. और करंट अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो हमें क्या पता चलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए कि देयर वाज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग लाइट एंड द इंसिडेंट एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड. इसका मतलब क्या था कि जो लाइट है जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था, इट वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द वेव, द स्ट्राइकिंग लाइट वाज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. सेकंड क्या देखा हम लोगों ने, सेकंड पॉइंट में देखा कि अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एक मिनिमम क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी लगेगा. एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट, मिनिमम एनर्जी लगेगा. और वो हमारे वेव थ्योरी में नहीं था. तो ये कहां से कंसेप्ट आया, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. बिकॉज इन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एनर्जी ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट दे सेड, यहाँ पे जब रे स्ट्राइक करेंगे तो उनका जो फ्रीक्वेंसी होगा which should be greater than or equal to the threshold frequency. तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे. ओके, ये था. और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगेगा उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलना है. इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगा उसको h0 बोलना है. और ये मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन. ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या देखा था हम लोगों ने,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसका एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के ऊपर डिपेंड। कैसे? क्योंकि अगर हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो सम फ्रीक्वेंसी विल बी यूज्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एंड द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी विल बी ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। So kinetic energy of the ejected electron is given by which formula? h nu minus h nu 0। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसके ऊपर के न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे। और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि यहाँ पे फोटोन अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी हमें फॉर एग्जाम्पल 11 मिलेंगे। अगर फोटोन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करोगे तो फोटोन नहीं, दे विल रिमेन्स द सेम। सो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन। सो बेसिकली to explain the photoelectric effect, we have to consider the electromagnetic wave theory and also we have to consider the Planck's quantum theory। Okay, अभी इसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल है, एक या दो न्यूमेरिकल है, वो हम लोग करते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है और एक फॉर्मूला के ऊपर है। ओके, तो कंसेप्ट में कोई डाउट पूछना है क्या आपको? मुझे कंसेप्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई डाउट पूछना है क्या? तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आई जस्ट गो फॉर द न्यूमेरिकल। एक दो न्यूमेरिकल करता हूँ, सिंपल न्यूमेरिकल है। The simple numerical right here, the first numerical I'll write here, the threshold frequency nu zero for a metal is 7.0 into 10⁻⁴ per second। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी लगेगा। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन electron emitted when radiation of frequency nu, that is 1.0 into 10⁻⁵ per second hits this metal। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम एक बार बराबर देखो। सी, हमारा जो मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, मतलब न्यू जीरो दिया, न्यू जीरो मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए? 7.0। 7.0 है इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड, इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए। और जो हमारा इंसिडेंट लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड। तो उन्हें बोला व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। So what is the formula? The kinetic energy of the electron is equal to h nu minus h nu 0. H is a common, so I'll take h common from both the sides. So nu minus nu 0. H is a Planck's constant. What is the value of Planck's constant? 6.626 into 10⁻⁻34. ये Planck's constant है into nu. What is the nu? 1 into 1.0 into 10⁻⁵ minus what is nu 0? 7.0 into 10⁻⁴. Okay, so here 6.626 into 10⁻⁻34। लेकिन अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँ? 10 रिमूव करूंगा तो यहाँ पे आएगा 10.0। 1.0 को मैंने क्या कर दिया? 10.0 इंटू 10⁻⁴ माइनस 7.0 इंटू 10⁻⁴। दोनों का पावर सेम कर दिया। दोनों का पावर सेम करने के बाद सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा? 6.626 इंटू 10⁻⁻34
10 minus 7, 10 minus 7 will be what? 3 into power 10 raised to 14. And then we get here 6.626 multiply by 3 into 10 raised to power minus 34 plus 14. Okay. And then here we can say multiply करना पड़ेगा 6.626 multiply by 3, 6 3s are 18, 3 2s are 6 plus 1 7, 6 3s are 18, 18 plus 1 19, decimal point of 3. So how much I got here? 19.878 into 10 raised to power 4 minus 4 is 0, 3 minus 1 is to minus 20. लेकिन इसे में और अगर मैंने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो पावर 10 होगा, तो 1.9. ऐसा भी आंसर करेक्ट है, ये हमारा आंसर करेक्ट है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, लेकिन मैंने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो पावर इंक्रीज बाय 1, तो 1.9878 into 10 raised to power 1 into 10 raised to power minus 20 अगर करूंगा तो कितना आएगा? 1.9878 into 10 raised to minus 19 जूल. तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी रहेगा. देखो हमारा देखो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 into 10 raised to power 15. हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है? 7 into 10 raised to power 14. मतलब ये लेस है और ये ज्यादा है. ये ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी निकाल देगा वहां से मेटल सरफेस से, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसको एनर्जी भी मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट के ऊपर बेस है. इस टाइप के न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना है. हमारे पास कौन जो बोर्ड एग्जाम मतलब सीईटी का जो मैंने आपको शीट्स दिया हुआ है उसमें आपको मार्क करके मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं. लेकिन आपको फोटो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट समझ में आ गया? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,